ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال، دیگر ملک کے قائدین نے افسوس کا کیا اظہار۔ تمام سرکاری تشخیصی مراکز غیر کارکرد، عملے کو 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، سابق وزیر ٹی ہریش راؤ کا کانگریس حکومت پر الزام۔ 5ویں مرحلے کے تحت 8 ریاستوں میں ہوئی پولنگ، فلمی ستاروں کے علاوہ دیگر نے بھی ووٹ کا کیا استعمال۔ فوڈ سیفٹی آفیسرز کی حیدرآباد کے مختلف ہوٹلز پر تلاشی مہم جاری۔ حیدرآباد ریجنل پاسپورٹ آفیسر اور دیگر نے جھنڈی دکھا کر عازمین حج کے قافلے کو کیا روانہ۔ یوپی میں بی جے پی کو 8 ووٹ ڈالنے والا نوجوان گرفتار، تحقیقات جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے، ان کے ساتھ وزیر خارجہ کے علاوہ دیگر افراد کی بھی موت ہو گئی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی صدر، ایرانی وزیر خارجہ، دیگر اعلیٰ افسران کی موت ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہوئی ہے۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد ہیلی کاپٹر کا ملبہ ملا۔ دراصل ہیلی کاپٹر اتوار کو آذربائیجان کے گھنے اور پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی صدر کے ہمراہ ہیلی کاپٹر میں ایران کے وزیر سمیت مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور صدر کے سیکیورٹی پرسنل سوار تھے۔ اس حادثے میں ان کی بھی موت ہو گئی۔ حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی نعش مشرقی آذربائیجان کے گہری کھائی میں برآمد ہو گئی۔ ایرانی فوج کی امداد ٹیموں نے گھنے جنگل سے صدر ابراہیم رئیسی کی نعش کو منتقل کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اس بات کی اطلاع دی۔ ایرانی صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ مشرقی آذربائیجان میں اتوار کو خراب موسم کی وجہ سے اس وقت پیش آیا جب وہ ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایرانی سوال اٹھا رہے ہیں کہ قافلے کے 2 ہیلی کاپٹر صحیح سلامت پہنچ گئے اور رئیسی کا ہیلی کاپٹر کیسے کریش ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ نائب صدر محمد مخبر کو ایران کا عبوری صدر بنایا گیا ہے۔ سابق وزیر و BRS کے رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر صحت عامہ کے تئیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کا الزام لگایا۔ ہریش راؤ نے کہا تلنگانہ ڈائیگنوسٹک سسٹم کا آغاز BRS کے دور حکومت میں کیا گیا تھا تاکہ ریاست کے عوام کو مفت طبی معائنے کی سہولت فراہم کی جا سکے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے کے 5 ماہ میں ہی اس نظام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہریش راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ ریاست میں تمام سرکاری تشخیصی مراکز غیر کارکرد ہو چکے ہیں اور عملے کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ کے دور حکومت میں ریاست بھر میں 36 تشخیصی مراکز قائم کیے گئے تھے اور 134 قسم کے طبی معائنے دستیاب کروائے گئے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ لاکھوں غریب اور عام آدمی کے لیے بغیر مالی بوجھ کے معیاری طبی معائنوں کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے تشخیصی مراکز اب بد انتظامی کا شکار ہو گئے ہیں اور عملے کو 6 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی ہے، جو صحت عامہ کے تئیں کانگریس حکومت کی لاپرواہ رویے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت تشخیصی مراکز میں کام کرنے والے عملے کو فوری طور پر واجب الادا تنخواہوں کی ادائیگی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوام کو ہر قسم کے طبی معائنے اور طبی خدمات دستیاب ہوں۔ لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کی آج پولنگ ہوئی، جس میں سیاسی و سماجی قائدین کے علاوہ فلمی شخصیات نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے میں 8 ریاستوں بہار، جھارکھنڈ، لداخ، مہاراشٹر، اڑیسہ، اتر پردیش، مغربی بنگال اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 49 سیٹوں پر پولنگ ہوئی ہے۔ اکا دکا واقعات اور شکایات کے علاوہ کہیں سے بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اور پولنگ پرامن اور شفاف طریقے سے جاری رہی۔ اس موقع پر سیاسی قائدین کے علاوہ فلمی ستارے اور سماجی کارکنان نے بھی حق رائے دہی کا استعمال کیا۔
तलबिया की गूंज में शहर हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद नामपली हज हाउस से आज़मीन हज के काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी। तलबिया की गूंज में रोज़ाना काफ़िले रवाना हो रहे हैं। आज हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर स्नेजा ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि हमने हज कमेटी के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी अगर उनकी मदद की ज़रूरत रहेगी तो वो ज़रूर हज कमेटी के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखती हैं। सबको पहले अस्सलाम वालेकुम एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर टुडे एंड आपने बताया हमने इस बार स्पेशल काउंटर लगा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ऑलमोस्ट 1000+ हज एप्लीकेशंस को हमने फैसिलिटेट किया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ हमने बहुत कुछ काम किया है और मुझे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू फैसिलिटेट एंड दैट मेनी ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड फॉर द हज पिलग्रिमेज दिस ईयर। सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे सर ने बोला है प्लीज टेक प्रिकॉशंस, आपके हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख लीजिए और उधर भी अगर कुछ डिफिकल्टी है तो स्टेट हज कमेटी का ऑफिशियल्स होगा और हमारा एम्बेसी का ऑफिशियल्स भी होगा। जो भी दिक्कत है प्लीज रीच आउट टू देम एंड आई होप यू whatever you pray for you have a very safe and fulfilling Hajj and I hope the Almighty blesses all of us and we have a great future for all of us and मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगला साल भी हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ वर्क करना चाहेंगे और भी ज़्यादा पिलग्रिम्स को हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो सबके लिए बेस्ट विशेस एंड होप यू हैव अ वेरी सेफ एंड फुलफिलिंग हज पिलग्रिमेज। खुदा हाफिज़। थैंक यू। यूपी में एक शख्स ने 8 वोट डाले, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रियासत उत्तर प्रदेश में 8 वोट डालने के मामले में पुलिस ने नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। 13 मई को यूपी में पोलिंग हुई थी और इस दौरान एक नौजवान ने 8 वोट डाले थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। नौजवान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी शनाख्त अनिल सिंह के तौर पर की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पोलिंग टीम के तमाम अरकान को मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यहाँ के पोलिंग अमले के सभी अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की भी हिदायत जारी की। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयुष चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि वायरल वीडियो का नोटिस लिया गया है और इस मामले की संजीदगी के साथ तहकीकात जारी है। तहकीकात के दौरान कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगी। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो। पांचवा है, पांचवा। पांच वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। छठा वोट छठा।
सातवीं वोट सातवीं आठवीं शहर हैदराबाद में ख़वातीन का लिबास पहनकर चोरी की वारदात अंजाम दी गई। ख़वातीन का लिबास पहनकर फ्लैट में चोरी की वारदात अंजाम दी गई ताकि चोरों की शनाख्त न की जा सके। ये वारदात हैदराबाद के SR नगर जेड कॉलोनी के एक फ्लैट में अंजाम दी गई। फ्लैट के मालिक और वेंकटेश्वर राव ने पुलिस से इस खुसूस में की गई शिकायत में कहा कि उनके फ्लैट से कुफल शिकनी के ज़रिए चोरों ने 4 तोले की तुलाई जेवरात के अलावा 1 लाख रुपये नकद रकम और एक लैपटॉप की चोरी कर ली। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने अपार्टमेंट के CCTV कैमरों के फुटेज का तज्जिया किया तो ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि ख़वातीन का लिबास पहनकर ये वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में तहनीती तकरीब व तक़सीम इनामात व असनादात मुनक़्क़िद हुई। रियाजुल उलूम रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ई मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी की सदारत में ये तकरीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें उबैदुल्लाह कोतवाल चेयरमैन नकलियती मालियती कॉरपोरेशन तेलंगाना और मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उबैदुल्लाह कोतवाल ने 10वीं जमात में कामयाब तलबा की दीनी व दुनियावी तालीम में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की और इदारे की खिदमात की सताइश की। अब्दुल हन्नान ने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी की खिदमात को सराहा है। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी ने तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में नर्सरी तो 8वीं जमात के तलबा में इनामात और 10वीं जमात के तलबा में असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। Begum, daughter of Sheikh Ismail. Muhammad Sirajuddin. Fatima, daughter of Muhammad Umar. Son of Azim Fatmai, son of Sayyid Salim. Muhammad Kabir Amir, son of Qutub. Sheikh Ismail, son of Sheikh Rahim. Sayyida Salma. Halima Begum, daughter of Muhammad Sadika, son of Muhammad Bilal, son of Muhammad Ahmad, Muhammad Zubairuddin, son of Muhammad Mujibuddin, Sania, daughter of Abdul Shakir. سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی جماعتوں کو قبول فرما اے اللہ جو ہماری مسکان
नाजिर तो लोकल के ही करीब करीब हाँ बस ठीक। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन कमीशन की जानिब से टेट 2024 का पीर को रियासत भर में आगाज़ हुआ। पहली मरतबा ये इम्तिहान कंप्यूटर मबनी तरीक़ेकार के ज़रिए ऑनलाइन मुनक़्क़द किया जा रहा है। टेट इम्तिहान 2 जून तक जारी रहेगा, जिसमें रोज़ाना 2 सेशन होंगे। जारिया साल 2,86,000 से ज़्यादा अफराद ने इस इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 48,500 से ज़ायद इन सर्विस असातिज़ा भी शामिल हैं। पहले पेपर के लिए 99,900 से ज़ायद अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की और दूसरे पेपर के लिए 1,80,000 से ज़ायद अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की। मजमूई तौर पर 80 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें मिर्चल मलकाजगिरी ज़िला में सबसे ज़्यादा 25 मराकज़ शामिल हैं। रंगारेड्डी ज़िला 17 मराकज़ कायम हैं और इसी तरह पुलिस ने इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए हैं। तेलंगाना फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जानिब से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ होटलों पर तलाशी का काम जारी है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने शहर के मुख्तलिफ होटलों में तलाशी लेते हुए ज़ख़ीरे के गलत तरीक़े और दीगर कई खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की है। होटल में भी फूड इंस्पेक्टर्स ने गैर लेबल के अशिया को ज़ब्त कर लिया। टास्क फोर्स टीम ने अचानक मुआयना करते दीगर खाने के मुकामात पर धावे किए हैं। वोटिंग फ़ीसद बढ़ाने के मकसद के साथ महाराष्ट्र में एक होटल पर वोट के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट दिया गया। महाराष्ट्र में आज लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग जारी है। इस दौरान मुंबई के भिवंडी इलाके में वाक़ मशहूर होटल नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट ने पोलिंग के दिन राय दहिंदों के लिए एक बेहतरीन ऑफ़र पेशकश किया। नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट के मालिक खालिद भाई ने बताया कि आज पोलिंग के दिन वोट देने वाले हर फर्द को उनकी होटल में 10% का खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। डाइन विद डेमोक्रेसी के नाम से उन्होंने इस ऑफ़र की पेशकश की है। कोई भी शख्स वोट डालने की शनाख्त करने वाले उंगली पर सियाही का निशान बताकर होटल में 10% का डिस्काउंट हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऑफ़र के बाद कई लोगों ने वोट देकर उनकी होटल से इस खुसूसी पेशकश से फ़ायदा उठाया है। उन्होंने मज़ीद कहा, नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट के क़ियाम के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। नलगुंडा ज़िले में भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। तेलंगाना के ज़िला नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िला के मिरियालगुड़ा टाउन में उस वक्त पेश आया जब एक लारी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये लारी के सामने जाने वाली टाटा एस गाड़ी से टकरा गई। हादसे के साथ ही टाटा एस गाड़ी उलट गई और उसमें सवार 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसे के बाद लारी वहां से चली गई। ज़ख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की बुनियाद पर लारी की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल, दीगर मुल्क के कायदीन ने अफसोस का किया इजहार। तमाम सरकारी तशख़ीसी मराकिज़ गैर कारकर्द, अमले को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम। 5वें मरहले के तहत 8 रियासतों में हुई पोलिंग, फिल्मी सितारों के अलावा दीगर ने भी वोट का किया इस्तेमाल। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के हैदराबाद के मुख्तलिफ होटल्स पर तलाशी मुहिम जारी। हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और दीगर ने झंडी दिखाकर आज़मीन हज के काफिले को किया रवाना। यूपी में बीजेपी को 8 वोट डालने वाला नौजवान गिरफ्तार, तहकीकात जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।
ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔